سپورٹ کے بغیر نہ کوئی حکومت عوامی مفاد کے کسی بھی پروگرام کو آگے بڑھا سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی بھی حکومت جو ہے وہ میڈیا کے تعاون کے بغیر اپنے انیشیٹوز کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے۔ لہٰذا آج کی جو آپ کی طرف سے یہاں مشکل موسمی حالات میں موجودگی آپ کی اس نیشنل کاز میں کمٹمنٹ کی عکاسی کرتی ہے، اور میڈیا کا جو فرنٹ رول ایک ہراول دستے کا ہے، اس کی عملی تصویر آج آپ نے پیش کی ہے کہ کرونا کے خلاف پوری قوم جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے، اور پوری قوم جو ہے کرونا کے اس وبا کے خلاف وار فوٹنگ پہ لڑ رہی ہے، اور میڈیا جو ہے اس بیٹل گراؤنڈ میں سب سے اہم ترین ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج اس سینٹر کو وزٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب بھر میں ہم نے 127 سینٹر جو ہیں ان کو آپریشنل کیا ہوا ہے۔ ان ویکسینیشن سینٹر کے اندر ہمارا جو ٹارگٹ ہے کہ جو سینئر سٹیزنز ہیں وہ جب ویکسینیشن کے لیے آئیں تو ان کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب تک جو ہے وہ 4.25 لاکھ کے قریب جو ہے پنجاب بھر میں ہم اپنے شہریوں کو ویکسینیشن کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک NCOC کی ترجیحات کے مطابق فراہم کردہ ویکسین جسے ہم سینئر سٹیزن اور متعلقہ ایج گروپ کے مطابق ویکسینیٹ کرتے ہیں، لیکن جو ہمارا میڈیا کے ساتھ کام کرنے والا کیمرہ مین ہے، فوٹوگرافر ہے، جو ہمارے رپورٹرز ہیں یا میڈیا میں کسی بھی طرح فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ان کو وہ ویکسین ہم نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس کے SOPs جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ طے کرتی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا چاہتی، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ 1.5 ارب کی ویکسین خود سے صوبہ پنجاب کے بجٹ سے خریدنے جا رہی ہے۔ اس 1.5 ارب کی ویکسین کو ہم صوبے بھر کے جو محاذ پہ لڑنے والے سپاہی ہیں، ہمارے اس میں میڈیا سب سے پہلی ترجیح اور پہلی لسٹ میں ہے، پھر ہماری انتظامیہ ہے، پھر ہمارے تمام جو سول سوسائٹی کے افراد ہیں جو آگے آنے والے رمضان کے اندر ہم نے ان کو نان گورنمنٹل اور گورنمنٹل پارٹنرشپ کے ساتھ اکٹھا کر کے رمضان بازاروں میں اور سہولت بازاروں میں ان کی خدمات لینی ہے، تو لہٰذا 1.5 ارب کی جو ویکسین وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں حکومت پنجاب خریدنے جا رہی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ترجیحات ہم طے کریں۔ اس وقت جو میڈیا ہم سے سوال کرتا ہے کہ ہم آپ کے سپاہی ہیں، آپ کے بازو ہیں، اور اس جنگ میں سب سے اہم ترین کمانڈر ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ اس ترجیح میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ جو رول ہے اس کو ہم اسٹرینتھن کریں گے، اون کرتے ہیں اور آپ کو سپورٹ بھی کریں گے۔ دوسری بات جو کرونا کے حوالے سے پنجاب بھر میں انفارچونیٹلی جو ہمارے پاس فگرز ہیں اس کے مطابق
जो मंडे की फ़िगर होती हैं वो यूजुअली थोड़ी लो साइड पे इसलिए जाती हैं कि संडे की वजह से, छुट्टी की वजह से वो प्रॉपर डाटा अपलोड नहीं होता। लेकिन जो अमवात की शरह है वो आज भी 15 अमवात जो हैं वो पंजाब में हुई हैं। और ओवरऑल पंजाब के अंदर जो कोरोना का फैलाव है उसमें हमारे जो केसेस की तादाद बढ़ रही है, वो एक दिन में भी 2275 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। ये तादाद जो है वो पंजाब के अंदर बढ़ के इस वक्त तक 2,33,343 हो गई है। और सिर्फ लाहौर के अंदर एक दिन में 1362 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। इसके साथ फैसलाबाद में 141 केसेस एक दिन में सामने आए हैं। आपके रावलपिंडी के अंदर जहां हम बैठे हुए हैं 92 केसेस एक दिन में सामने आए हैं। इसके साथ सियालकोट जहां ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस हुआ है वहां 60 केसेस सामने आए हैं। और आपको सबको पता है कि इलेक्शन के अंदर जो आपका इंक पैड होता है, जो थंब लगाते हैं आप थंब इम्प्रेशन के लिए, हर एक उसी एक इंक पैड के ऊपर अपना कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करता है। तो वो इलेक्शन जो है वो किस तरह कोरोना को स्प्रेड करने का बायस नहीं बनेगा, ये एक अलहदा बहस है। और इसमें हम इलेक्शन कमीशन से ये चाहते हैं कि ये कैसा इलेक्शन है जिसके अंदर इस वक्त ना कैंडिडेट जलसा कर सकता है, ना कैंडिडेट को रैली निकाल सकता है, ना कैंडिडेट जो है वो कॉर्नर मीटिंग कर सकता है, ना कैंडिडेट अपनी कैंपेन कर सकता है और वोटर तक अपना पैगाम नहीं पहुंचा सकता। तो इलेक्शन वाले दिन वो वोट का जो स्टैंप लगाने का तरीक़ाकार है और जो बैलेट पेपर देने का तरीक़ाकार है वो सारे कोरोना के SOPs की वायलेशन में आते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को उस इलेक्शन में हम कैसे यकीनी बनाएंगे और क्या तरीक़ाकार होगा, उसकी वजह से पोलिंग स्लो होगी और जो मेजॉरिटी हमारे वोटर्स हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इस इलेक्शन के हवाले से एक और चैलेंज है जिससे नबर्द आज़मा होने के लिए हुकूमत पंजाब पुरज़म है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक इस हवाले से हमें आज सर-ए-नौ अपनी तरजीहात का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो आज की अहम है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पंजाब भर के अंदर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में जहां हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डेवलपमेंट पैकेज देने जा रहे हैं, खुद ग्रास रूट लेवल पे जाके हर ज़िले में 100 जो इस वक्त हमारी 146 तहसीलें और 36 के करीब जो अज़ला हैं, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार उन ज़िलों की डेवलपमेंट के लिए खुद जो है अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी में, तमाम स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी में अवाम को यकसा तरक्की का जो हक़ है उनकी तहलीस पे पहुंचाने जा रहे हैं। और जो हमारे सियासी इस वक्त मुखालफिन हैं उनकी नींदें हराम हो गई हैं। आपने देखा कि PDM को जो मसनूई सांसों पे ज़िंदा रखने की कोशिश की गई उसका अल्टीमेटली रूह परवाज़ कर चुकी है और एक मुर्दा जिस्म जो है वो कंधों पे उठा के PDM का वो जाली राजकुमारी जो है वो मार्केट में फिर रही है। और एक नया डंडोरा और एक नया वतीरा जो डॉक्टर अदनान की शक्ल में इस वक्त एक पुरअसरार बीमारी जिसका अभी तक किसी को नहीं पता कि वो कौन सी ऐसी बीमारी है जो सिर्फ ट्विटर तक दोबारा वो महदूद हुई हैं और उनकी
जो रूनुमाई है, आज कई दिन जो है वो गुजर गए हैं, किसी ने नहीं देखी है। तो मैं ये समझती हूँ कि डॉक्टर अदनान, आपका जो साबका माजी का रिकॉर्ड है वो पुरस्रार बीमारियों में हेरा फेरी करके रिपोर्टें फज करा के प्लेटलेट्स के उतार चढ़ाव के माहिर तो आप साबित हो गए। अब जाली राजकुमारी की कौन सी ऐसी नई बीमारी ईजाद करने आप पाकिस्तान आए हैं जिसके तहत सबसे पहले उनकी आपने गोशा नशीनी इख्तियार कराई है और आजकल सिर्फ वो सोशल मीडिया के ज़रिए अपना गम गलत करने में मसरूफ़ अमल है। आज सेनेट के अंदर भी आपने देखा है कि जो एक दूसरे का दर्द बांटने निकले थे, एक दफ़ा फिर सेनेट के फ्लोर के ऊपर उन्होंने एक दूसरे से राहें जुदा की हैं और आज़ाद अपोजिशन का नारा जो एक नौ मौलूद सेनेटर हैं जिनका इससे पहले ना किसी ने को पार्लिमानी सिस्टम में नाम सुना, ना कभी किसी ने उनका पार्लिमानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर किसी जगह रोल देखा, वो अचानक ज़िले सुबहानी के वकील के तौर पे तो जाने जाते थे, वो पस पर्दा शाही ख़ानदान के एक खिदमत गुजार के तौर पे तो उनका तारफ़ था, लेकिन सेनेट के अंदर उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने का जो ज़िले सुबहानी का एक बयान था और ख्वाहिश थी, आज उन्होंने ये दरख्वास्त दी कि आज़ाद अपोजिशन जो है वो सेनेट के अंदर काम करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि PMLN जो है उसने अपना टाइटल छोड़ दिया, अपना लेबल छोड़ दिया। ज़िले सुबहानी का नाम लेना, PMLN का नाम लेना उन्हें भी अब बोझ लगने लग गया और उन्होंने सेनेट में आज़ाद होने का दावा कर दिया। तो लिहाजा इमरान खान की क़यादत में ये पाकिस्तान जो है आगे बढ़ रहा है। इमरान खान आज गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए उनको वो आइनी खुद मुख्तारी और फिर मुआशी खुद मुख्तारी जो आज देने जा रहे हैं और वहाँ उनके जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए तरक्याती पैकेज हैं, ये इस बात की अक्कासी करते हैं कि ये टोला जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया की स्क्रीनों में ज़िंदा रहेगा और इमरान खान, उस्मान बुज़दार और PTI की हुकूमत जो है वो अवाम के दिलों में ज़िंदा रहेगी और हमारे मंसूबे, हमारी फ़लाई जो इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज़ हैं वो पाकिस्तान को और सूबा पंजाब को ख़ुसूसन 12 करोड़ जो अवाम है उनको आगे बढ़ने में, पाकिस्तान को और पंजाब को तरक्की और खुशहाली के धारे में शामिल रखने के लिए मामन साबित होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। मैडम ये बताइएगा कि आपने